गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स, नीट एंट्रेंस एग्जाम्स, राइट? इट is also helpful in your CBSE exams, board exams. So now let's see in detail the menstrual cycle. Okay, so before we begin in detail, so let's see what is menstrual cycle basically. So menstrual cycle is a kind of cyclical changes. Okay, they are cyclic changes in the female reproductive system of primate mammals, right? Primate mammals में कौन कौन से mammals आते हैं? For example, monkeys, apes, and human beings. Okay, these are primate mammals, right? So, so menstrual cycle takes place in primates, right? And it is cyclic, means it is repeated every month, right? तो जैसे हमने पढ़ा था कि when females attain sexual maturity, then menstrual cycle starts in females. So it is at the age of around 11 years to 14 years, right? So the start of menstrual cycle in females, starting of menstrual cycle is known as menarche. Okay, so let me type here. So it's important. Menarche is starting of menstrual cycle in females at the age of around 11 to 14 years. So second point about menstrual cycle. So menstrual cycle में क्या होता है? So menstrual cycle में कुछ changes होते हैं. Pituitary hormones में changes होंगे, right? Ovary में कुछ changes होंगे, और यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, यूट्रस में चेंजेस होंगे, राइट? सो so these changes together constitute the menstrual cycle. तो इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और menstrual cycle जो होता है, you see reproductive age of female starts at 11 to 14 years, and human females remain productive in reproductive sense up to the age of 45 to 50 years. यानी जब 40 ह्यूमन फीमेल जब 45 इयर्स या 50 इयर्स की हो जाती हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उनमें, राइट? तो किसी में 45 इयर्स में रुक जाता है, किसी में 50 इयर्स में रुक जाता है, किसी में 55 इयर्स तक रुकता है, राइट? सो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज. It is also important. Menopause is stopping of menstrual cycle at the age of around 45 years to 55 years. तो हमने देखा कि जो रिप्रोडक्टिव एज है तो इसमें हर महीने एक फॉलिकल मैच्योर होता है, मैच्योर फॉलिकल बनता है, उसमें मैच्योर एग बनता है, राइट? तो एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल का होगा उसमें करीब करीब 450 450 एग्स बनेंगे टोटल in female reproductive life cycle, total life of the female, right? So this is about what is introduction about menstrual cycle, right? और तो अब वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में. सो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने 3 स्टेजेस में बांटा हुआ है, 3 और 4 स्टेजेस. ओके, सो first stage is called menstruation. Okay, you can see this is menstruation. So menstruation is also known as bleeding phase. Okay, तो इसको bleeding phase इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें bleeding होती है, right? और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 दिन से लेके 5 दिन तक होती है, right? So that is first phase, that is bleeding phase or menses. It is also called menses, menses. Let me type. That is menses. Okay, so that's the first phase. So it has different names. Let me show you different names.
Okay, so as per NCERT, you can see at the bottom. So at the bottom, the first 3 to 5 days is called menses, right? So इसमें जो ब्लीडिंग होती है इट इज बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक हो जाती है। आपको हमने बताया था कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो काफी वेस्कुलर होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट? तो जब एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुएशन, राइट? तो ये क्यों होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगला जो नेक्स्ट स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, that is known as follicular phase, follicular phase or also known as proliferative phase, second phase, right? follicular phase और proliferative phase। तो इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होगी? इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो 5 दिन से लेके और 13 डेज तक, ओके, 5 to 13 डे, राइट? तो पहले 3 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डेज होते हैं 14वें दिन तक, ओके, यानी 13वें दिन तक उसको बोलेंगे हम फोलिकुलर फेज। तो ये करीब करीब 5 दिन से लेके और 13वें दिन तक, तो ये टोटल कितने दिन हो गए ये आप काउंट कर सकते हैं, राइट? सो करीब करीब 7 to 8 डेज, राइट, का ये स्टेज होगा फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज। और इसके भी अलग दो नाम क्यों हैं ये भी हम बताएंगे आगे। इसको फोलिकुलर फेज इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि ओवरी में एक फोलिकल मैच्योर हो रहा होता है। यू कैन सी वन फोलिकल इज मैच्योरिंग इन द ओवरी, सो इसलिए इसको फोलिकुलर फेज बोलते हैं। फोलिकुलर, ओके, फोलिकल्स आर डेवलपिंग, राइट? वन फोलिकल, ओके, इज डेवलपिंग। तो जैसे हमने बताया था कि हर महीने एक प्राइमरी फोलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और वो मैच्योर फोलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो क्योंकि फोलिकल, बिकॉज फोलिकल्स आर एक्टिव, इसलिए इसको फोलिकुलर फेज बोलते हैं, राइट? और इसमें इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यूट्रस की जो वॉल होती है वो और थिक होने लगती है, ओके, प्रोलिफरेट होने लगती है। प्रोलिफरेट होता है ग्रोथ होना, ओके। तो ब्लीडिंग फेज के बाद यानी फिर से यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, जो वॉल होती है वो ग्रो करने लग जाएगी, थिक होने लग जाएगी, उसमें और ज्यादा ब्लड वेसल्स बन जाएंगे और ज्यादा ग्लैंड्स बन जाएंगी, राइट? तो इसलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। और तीसरा फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन, ओके। ओव्यूलेशन 14 दिन होता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस ऑन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? और उसके बाद जो फोर्थ स्टेज होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी टोटली 28 दिन का साइकिल होता है, राइट? तो इसमें पहला फेज हमने डिस्कस किया, दूसरा फेज डिस्कस किया, अब तीसरा फेज का जो नाम डिस्कस कर रहे हैं, थर्ड फेज इज नोन एज लूटियल फेज। तो लूटियल फेज जो है वो 15 दिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, 15 दिन से स्टार्ट होगा और 15 से लेके और करीब करीब ये 28वें दिन तक यानी लूटियल फेज रहेगा, राइट? और तो इसको लूटियल फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, ओके। आप देख रहे हैं 14वें दिन आप देख रहे हैं कि मैच्योर फॉलिकल जो है वो ब्रेक हो गया है, ओके, सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाती है, इसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, राइट? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, हमने पहले पढ़ा था। तो ये ओव्यूलेशन जो होता है रिलीज ऑफ ओवम होता है ओवरी से, ओके, इसको हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? ओव्यूलेशन। ये 14th डे पर होगा। और तो ओव्यूलेशन के बाद जो बाकी जो फॉलिकल की जो स्ट्रक्चर बन जाती है उससे बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये हमने पहले पढ़ा था। कॉर्पस ल्यूटियम इसमें एक्टिव रहता है, राइट? कॉर्पस ल्यूटियम यानी अपना हार्मोन बनाता रहता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहती है, और इसलिए इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्टिव इन दिस फेज, सो इट इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। और कॉर्पस ल्यूटियम
काफी एक्टिव रहती है। इसके अलावा जो यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती हैं, आप देख रहे हैं यूट्रस काफी थिक, यूट्रस की जो वॉल है काफी थिक हो गई है, ठीक है, और इसकी ग्रोथ काफी हो चुकी है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल बन चुके हैं, ग्लैंड्स भी डेवलप हो चुकी हैं, राइट। सो यूट्रस बिकम्स हाईली ग्लैंडुलर, हाईली वेस्कुलर, थिक एंड वाटरी सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, राइट। तो यानी ये भी सिक्रेटरी होता है, ओके। तो यूट्रस की जो ग्लैंड्स होती हैं वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करती हैं, काफी ओके एक्टिव होती हैं सिक्रेशन प्रोड्यूस करने में, इसलिए इसको सिक्रेटरी फेज भी बोलेंगे, राइट। अ, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ओके, यानी अगर स्पर्म्स एग से कंबाइन नहीं करता है, तो जैसे हमने बताया था कि उसके बाद यानी 28वें दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम में जो है वो डिग्रेड हो जाती है, कॉर्पस अल्बिकस बन जाती है, और उसके बाद जो है फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये अब इसको हमने अभी बताया, इसमें स्टेजेस बताए हैं, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, 4 स्टेज होंगे। मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन का होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज फोलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड फेज ओवुलेशन, ओवुलेटरी फेज, और नेक्स्ट फेज ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज, आल्सो नोन एज दिस सिक्रेटरी फेज, राइट। सो जो जो सेकंड फेज है प्रोलिफरेटिव फेज, इसको हम प्री ओवुलेटरी फेज ही बोल सकते हैं, प्री ओवुलेटरी, क्योंकि ओवुलेशन से पहले का फेज है, ठीक है। और जो ल्यूटियल फेज है इसको हम पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद हो रहा है, इसलिए पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब इसका हम डिटेल में हम देखेंगे कि आखिर ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, राइट। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फिर स्टॉप होता है, राइट। और इसके अलावा तो मेनोपॉज जो होता है वो यानी एट द एज ऑफ 45 इयर्स टू 55 इयर्स होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल जब प्रेगनेंसी होती है तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, राइट, राइट। और जब लैक्टेटिंग स्टेज होता है, ओके, जब ब्रेस्ट फीडिंग स्टेज होता है मदर का, तब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, राइट। तो ये कंडीशंस होती हैं, यानी जब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब रुका होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। प्रेगनेंसी के दौरान भी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी रुक जाता है। तो अब हम देखते हैं डिटेल में, हम इसको देखेंगे कि कैसे हाउ ये जो चेंजेस हो रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओके, ये कैसे इंटर रिलेटेड हैं, राइट, इनमें क्या रिलेशन है, और एक में जब चेंज हो रहा है तो दूसरा उससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, तो ये हम देखेंगे इन द दिस स्लाइड इन डिटेल। ओके, तो स्टेजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, राइट। मेंसेस, प्री ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन फेज जो 14 डे होता है, पोस्ट ओवुलेटरी फेज। अब हम इसको डिटेल में बताते हैं वन बाय वन। सो you see the menstrual cycle is a interrelated sequence of events, okay। ये जो इवेंट्स होती हैं कुछ पिट्यूटरी में हो रही होती हैं, राइट, कुछ ओवरी में हो रही होती हैं, और कुछ यूट्रस में हो रही होती हैं, राइट। और अ, और ये इवेंट्स में इंटर रिलेशन होता है आपस में, राइट। तो पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी में क्या चेंज हो रहे होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है। तो देखिए ऊपर यहाँ पे, तो पिट्यूटरी जो होती है आपको पता है कि हाइपोथैलेमस होती है, राइट। हाइपोथैलेमस में बनता हार्मोन गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस का हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, राइट, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको स्टिमुलेट करेगा, राइट। और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर अपने हार्मोन बनाती है, दो हार्मोन बनाती है, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वन इज FSH, सेकंड इज LH। ठीक, हाइपोथैलेमस का यानी GnRH हाइपोथैलेमस से बनता है, फिर वो पिट्यूटरी में जाएगा, राइट, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, फिर पिट्यूटरी बनाएगी FSH and LH। FSH इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं मेल्स में, राइट। मेल्स में हमने इसको बोला इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैं टाइप कर देता हूँ ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
LH is also known as luteinizing hormone, also known as interstitial cells stimulating hormone. Okay, इन मेल्स में इसको आई यानी मेल्स में इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं. ओके, ICSSC बोलते हैं मेल्स में, और फीमेल्स में इसको केवल LH बोलेंगे, राइट. तो यानी मेल्स में इसको ICSS क्यों बोलते हैं? क्योंकि टेस्टिस में हमने देखा था कि लेडिक सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स को हम इंटरस्टिशियल सेल्स ही बोलते हैं. ओके, और ये जो हार्मोन होता है ये टेस्टिस की लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस की इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं. अब हम यानी फीमेल में इसका देखते हैं. ओके, सो तो जो पिट्यूटरी जो हार्मोन आएगी अपने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये फिर ब्लड के थ्रू ओवरी तक चले जाते हैं, ओवरी में जाएंगे. ओके, और ओवरी में जाके क्या करेंगे? ओवरी में जाके जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके नाम से लग रहा है ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ स्टिमुलेट करता है. तो हमने देखा था कि पिछली बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ईच ओवरी हैज 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स, राइट. तो ये एक प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ करना स्टार्ट करवा देता है, राइट. और तो प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट्स डेवलपिंग, इट स्टार्ट इट्स ग्रोथ, राइट. तो प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, राइट. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनेगा, टर्सरी फॉलिकल से मैच्योर फॉलिकल बनेगा, मैच्योर फॉलिकल इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिन फॉलिकल, राइट. और इसमें सेकेंडरी साइड होती है. तो ये फंक्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का. ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, और क्योंकि ये ओवरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. और इसमें यानी ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, ओवरियन फॉलिकल्स यानी एक्टिव हो रहे हैं, राइट. और इसीलिए इस स्टेज को हम फॉलिकुलर स्टेज भी बोलते हैं, राइट. ये जो हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले अभी, तो इसलिए इसको फॉलिकुलर स्टेज भी बोलते हैं. और दूसरा जो हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये जो है जब मैच्योर फॉलिकल बन जाता है उस पे एक्ट करता है. ये मैच्योर फॉलिकल की वाल को रप्चर करवा देता है, राइट. और इससे क्या होगा? सेकेंडरी साइड बाहर आ जाएगी, राइट. ओवुलेशन हो जाएगा. ओके, तो इट हेल्प्स इन ओवुलेशन. LH, okay, ruptures the wall of mature follicle, right. Ovulation takes place because of luteinizing hormone, right. तो ये LH का फंक्शन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का फंक्शन है. और अब हम देखते हैं आगे क्या होगा, राइट. तो अभी हमने देखा हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी में जाता है, पिट्यूटरी अपने हार्मोन बनाती है, फिर वो ओवरी में काम करते हैं, ठीक है. और तो ओवरी के FSH की वजह से ओवरी में एक मैच्योर फॉलिकल बन जाता है, राइट. तो ये जो मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं ये फिर एक हार्मोन भी सीक्रेट करते हैं. ओके, तो ये जो जैसे सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल की वॉल है, सेकेंडरी फॉलिकल की वॉल है, राइट. टर्सरी फॉलिकल की वॉल है, मैच्योर फॉलिकल की वॉल है. इनमें क्या होते हैं? फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ग्रानुलोसा सेल्स होती हैं, राइट. और ये सेल्स क्या करेंगी? These cells will produce estrogen. Okay, so the cells of the follicle, granulosa cells of the follicle produce estrogen. Estrogen produce करना start कर देती हैं, right. और ये जो एस्ट्रोजन है फिर ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस में पहुंच जाएगा. ये यूट्रस की वॉल पे एक्ट करेगा और यूट्रस की वॉल की ग्रोथ करना स्टार्ट करवा देता है. ब्लीडिंग फेज के बाद, मेंस्ट्रुएशन के बाद, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद, यानी एस्ट्रोजन जो है यूट्रस की वॉल की ग्रोथ करवाना शुरू कर दे रहा है. यू कैन सी द एंडोमेट्रियम, ओके, वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम इज बिकमिंग थिकर एंड थिकर, इजंट इट. पतली है फिर थिक होती जा रही है, यू कैन सी. ओके, तो इट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन. तो जैसे हमने पहले बताया था, एस्ट्रोजन इज ए फीमेल सेक्स हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड
development of secondary sex organs. So uterus is a secondary sex organ, isn't it? तो ये यहाँ पे इसकी ग्रोथ करवा रहा है एस्ट्रोजन, यानी प्रोलिफरेशन करवा रहा है, यूट्रस की वाल का प्रोलिफरेशन करवा रहा है, उसकी ग्रोथ करवा रहा है. सो दैट इज क्लियर अबाउट एस्ट्रोजन रोल. अब हम देखते हैं ओके, तो हमने देखा कि किस तरह रिलेशन है, ठीक है, हार्मोन हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स में पिट्यूटरी में रिलेशन है, ठीक है, पिट्यूटरी के हार्मोन्स का इफेक्ट जो ओवरी पे पड़ता है, फिर ओवरी में कुछ चेंजेस होते हैं, उससे फिर एस्ट्रोजन बनता है और उससे फिर यूट्रस की ग्रोथ होती है. तो ये इंटर रिलेशन है, लिंक्ड है, देयर इज अ लिंकेज, राइट. तो ये हमने देखा फोलिकुलर फेज की, हमने यानी डिटेल में डिस्कस किया कि फोलिकुलर फेज में क्या होता है. तो फोलिकुलर फेज में ये हमने देखा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेज इज ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन हमने बताया कि 14th डे हो रहा है, राइट, 14th डे, क्योंकि 14th डे ही यानी मैच्योर फोलिकल ब्रेक होता है और इसलिए इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में अब आगे देखते हैं. तो नेक्स्ट स्टेज में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, राइट, तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ओके, यानी जैसे हमने देखा पिछली बार बताया था हमने, यानी ओवुलेशन के बाद जो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाती है, ओके, ग्रानुलर सेल्स की, इट प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, राइट. कॉर्पस ल्यूटियम बना लेती है, येलो बॉडी बना लेती है. और कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो, राइट. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन बनाएगी, प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाएगी, ठीक है. एस्ट्रोजन भी बनाएगी, लेकिन एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा होगा, राइट, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट. एस्ट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ करवाता है यूट्रस की वॉल की, एंडोमेट्रियम की, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्रस की ग्रोथ को मेंटेन रखवाता है, मेंटेन, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी, ओके, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के जो कितना अमाउंट होता है हम आगे देखेंगे, अगले स्लाइड में देखेंगे. पहले हम यानी थोड़ा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में मेन पॉइंट. So you can see, because corpus luteum is active, it is secreting estrogen and progesterone, and so it is also called secretory phase, right. और ये you can see ये दोनों हार्मोन यूट्रस की वाल को और ग्रो करवा रहे हैं, आई मीन एस्ट्रोजन इसके और ग्रो करवा रहा है और प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन रखवा रहा है, राइट. तो ये इनका रोल हो गया सिक्रेटरी फेज में या ल्यूटियल फेज में, राइट. तो ये दिस इज वन सिनेरियो. दूसरा सिनेरियो है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, राइट, यानी प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है, तो प्रेगनेंसी अगर नहीं होती है तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जब वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, राइट, और ये 28वें दिन तक ये व्हाइट फाइब्रस बॉडी बन जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस, व्हाइट बॉडी होती है ये. और कॉर्पस एल्बिकेंस कोई हार्मोन नहीं बनाएगी, राइट. तो जब कॉर्पस एल्बिकेंस से कोई हार्मोन नहीं बनेंगे तो क्या होगा, यानी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, isn't it? क्योंकि ये तो कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट होगी कॉर्पस एल्बिकेंस में, तो इसलिए क्या होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस तो कोई हार्मोन नहीं बनाएगी, इसलिए यानी इनका लेवल कम हो जाएगा. और जैसे इनका लेवल कम होगा तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, यूट्रस का एंडोमेट्रियम ब्रेक, okay, the endometrium of uterus will break down, right. इसकी वॉल टूट जाएगी यूट्रस की, शेडिंग हो जाएगी, राइट. और ये 28वें दिन यानी ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाता है, ओके, जैसे हमने कहा. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी 28वें दिन यानी फिर से जो थिक वॉल थी यूट्रस की टूटने लग जाती है, ओके, ब्रेक, इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग, इससे ब्लड वेसल टूट जाता है, वॉल टूटती है तो ब्लड वेसल भी टूटने लग जाएंगे, राइट, ग्लैंड्स भी टूट जाती हैं और वॉल फिर से पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, यू कैन सी. और ये ब्लीडिंग यानी कंटिन्यू रहती है, तीन दिन से लेके 5 दिन तक कंटिन्यू रहती है, ओके. जैसे यहाँ पे पहला दिन स्टार्ट हो गया ब्लीडिंग, 28 दिन के बाद यानी 28वें दिन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, और यू कैन सी पहले दिन ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, फिर दूसरे दिन रही, ओके, फिर 3 4 5 दिन तक रह सकती है ये, ओके. तो ये फिर से यानी अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से अगला स्टार्ट हो गया 28 दिन के बाद, राइट. तो ये हमने देखा
stages of various stages and their details about various things. ये इसमें ये है कि ओवरी में जो चेंज हो रहे हैं हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है, और ये यूट्रस की वॉल में जो हो रहा है चेंजेस हमने दिखा रहा है। यूट्रस की वॉल के जो दो पार्ट होते हैं, नीचे वाला पार्ट होता है स्ट्रेटम बेसालिस, ऊपर वाला पार्ट होता है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, राइट। तो अब हम थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में डिटेल में हम देखते हैं। हार्मोन्स की जो पीक होती हैं, ओके, उसके बारे में हम देखते हैं अगली स्लाइड में। हार्मोन्स की जो पीक्स होती हैं वो भी इम्पोर्टेंट होती हैं। जस्ट मिनट, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, तो पहले हमें हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल हमें देखना है, ठीक है। ये जो रेड वाला है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल है, ठीक है, यानी ब्लड में लेवल है। तो ये जो लेवल है पहले कम होता है, राइट, और ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द साइकिल, ठीक है, देखिए 13वें 14वें दिन, ओके, यानी करीब करीब 14 दिन से पहले, यानी 13वें दिन करीब करीब 13th डे करीब, ये जो है ये पीक इसके आ जाती है, एफएसएस की पीक आती है, राइट, इन द मिडल ऑफ साइकिल, ओके। और उस ऐसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये वाला, ओके, ये वाला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका लेवल भी शुरू में कम रहता है, और इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इसकी भी पीक बन जाती है, यानी इसका लेवल हाईएस्ट हो जाता है, ठीक है, यू कैन सी पीक, इस पीक। और तो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि एफएसएस और एलएस की जो पीक होती हैं, यानी इसका जो हाईएस्ट लेवल होगा वो कब होगा, इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड 13 डेज, राइट। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एफएसएस की पीक कम होती है, लेवल कम होता है, एलएच का लेवल ज्यादा होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे यूनिट एलएच, एफएसएस रेड वाला है, एलएच यानी ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो एलएच का लेवल ज्यादा होता है एफएसएस के लेवल से, ये दूसरा पॉइंट है, राइट। और उसके बाद यानी आप देख रहे हैं आगे, अगर ये उसके बाद इनका सेकंड फेज में उसके बाद इनका लेवल कम होने लग जाता है फिर से, ये ओके। और ये तो ये इनका स्टेटस है, राइट। और फिर हमने देखा कि हाँ, ये ओवरी में चेंज हो रहा है, ये तो एनसीईआरटी का ही है, ठीक, ओके। उसके बाद ओवरी में जो ये फॉलिकल्स होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं ग्रानुलोसा सेल्स, दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ये मेनली ये जो पहला फॉलिकुलर फेज है इसमें मेनली एस्ट्रोजन बनेगा, राइट, एस्ट्रोजन। तो देख इसका हमें लेवल देखना है, जो यानी ओवरी के जो हार्मोन्स होते हैं उनको बोलते हैं ओवरियन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। इसका हमें इसकी भी हमें लेवल याद रखना है, पीक याद रखनी है। तो हमने देखो एस्ट्रोजन का जो लेवल है शुरू में, देखो ये यानी ये है, ये लेवल कम होता है, और ये भी ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द साइकिल, यानी ये पीक पे चला जाता है, ठीक है, यानी पहले बढ़ने लगता है, ये इसी बढ़ने लग रहा है, बढ़ते बढ़ते इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर पीक आ जाती है, हाईएस्ट लेवल आ जाता है, राइट। ये भी ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द साइकिल, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मेजर फॉलिकल, ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद 14वें दिन क्योंकि ओवुलेशन हो जाता है, राइट, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, तो इसलिए इसका लेवल फिर से गिरने लगता है, राइट, इसी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम क्योंकि एस्ट्रोजन ज्यादा नहीं बनाती है, तो इसलिए इसका लेवल गिरने लगता है फ्रीक्वेंसी। लेकिन एक पीक और आती है सेकंड स्टेज में, ल्यूटियल फेज में। ल्यूटियल फेज में ये आप देख रहे हैं फिर से, यानी क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम भी फिर से एस्ट्रोजन थोड़ा बनाने लग जाती है, राइट, तो ये देखो फिर से एक पीक आने लगी है, राइट। तो आपको याद रखना है दो पीक आती है एस्ट्रोजन की, राइट। एक फोलिकुलर फेज में आती है ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द साइकिल, हाईएस्ट लेवल आता है इन द मिडल ऑफ साइकिल। और दूसरा जो पीक होती है एस्ट्रोजन की वो कब आएगी, इन द ल्यूटियल फेज, राइट। तो और अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है तो ये यानी लेवल बना रहता है, इन हार्मोन्स का लेवल बना रहता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर से इनका लेवल यानी कम आ जाता है, नीचे आ जाता है, राइट। ऐसे ही प्रोजेस्टेरोन का है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहले इसका लेवल काफी कम है, ओके, फोलिकुलर फेज में यानी ऑलमोस्ट ये काफी कम है, राइट।
क्योंकि ये मेनली कॉर्पस ल्यूटियम से ही बनता है, isn't it? ग्रानुलर जो फॉलिकल सेल्स होती हैं, ओके, इनकी जो सेल्स दे मेनली प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो बहुत नेग्लिजिबल बनाती है, इसलिए इसका लेवल कम है। और सेकंड स्टेज में आप ये ल्यूटियल फेज में आप देख रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है और ये मेनली प्रोजेस्टेरोन बनाती है ज्यादा, तो इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाता है। जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनती है इसका लेवल बढ़ने लग जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लग जाता है और ये इसकी हाईएस्ट लेवल यहाँ पे बढ़ इतना हो गया है, राइट। और ये लेवल मेंटेन रहता है प्रेगनेंसी अगर हो जाती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होने लग जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिग्रेड होने लग रही है, इसका रिड्यूस होने लग रही है, राइट। तो जैसे कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड होगी तो इसका जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी कम बनेगा, प्रोजेस्टेरोन भी कम बनेगा, तो इसका लेवल भी घटने लगता है प्रेगनेंसी नहीं होती है तो। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटने लगता है, प्रोजेस्टेरोन एक लिमिट से कम हो जाता है, तो वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम को मेंटेन नहीं कर पाएगा, यूट्रस का एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, तो फिर से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये था कि क्या कैसे यानी लेवल यानी कितनी पीक आती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की, ओके। तो आपने देखा प्रोजेस्टेरोन में केवल एक ही पीक आ रही है, वो भी सेकंड ये ल्यूटियल फेज में आ रही है, ये भी आप याद रखना है, राइट। तो इसके FSLS की जो पीक्स हैं उनका लेवल है, कौन से फेज में कितना है आपको याद रखना है, राइट। तो ये हाईली सिंप्लीफाइड है ये, राइट। तो एस्ट्रोजन की 2 पीक आ रही है और प्रोजेस्टेरोन की एक पीक आ रही है, वही दूसरे यानी ल्यूटियल फेज में आ रही है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। और तो ये एक्चुअल है, ठीक है। जैसे ये FSH का ये LS का पीक है, राइट, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और क्योंकि FSH बनता है तो FSH की वजह से ही फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं फॉलिकल ये की ग्रोथ करवा रहा है FSH। 14 डे ओवुलेशन हो रहा है, ओके, आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, फिर ये इन्वोल्यूशन मतलब डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है, राइट। और ऐसे ये प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल इसने दिखा रखा है, एस्ट्रोजन एस्ट्राडाइल में एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये इसने तो ये भी ऑलमोस्ट वही है, एस्ट्रोजन की 2 पीक होती हैं, राइट। प्रोजेस्टेरोन की केवल एक ही पीक है सेकंड ल्यूटियल फेज में, राइट। और ये हमने डिटेल में देखा। और तो ये यूट्रस का दिखा रखा है, इसमें यूट्रस में ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट। और ये ब्लीडिंग फेज हो रहा दिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट हम और मेंशन करेंगे। So you can see that जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उसमें प्राइमरी oocyte होती है, राइट, प्राइमरी oocyte। और ये बर्थ से पहले बन चुके थे, मैंने बताया था। और उसके बाद प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, राइट। और उसके बाद हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होने लगता है, ओके। तो यू कैन सी ये जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर प्राइमरी oocyte है, ओके। लेफ्ट साइड में इसने oocyte का स्टेज दिखा रखा है, राइट। यानी फॉलिकल्स का यानी क्या रिलेशन है, ओके, उसके अंदर की सेल का ये दिखा रखा है। तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होगी, राइट। और उसके बाद तो ये जो प्राइमरी oocyte होती है वो मियोसिस 1 में होती है, राइट, मियोसिस 1 में होती है। और ओव्यूलेशन से जस्ट पहले मियोसिस 1 कंप्लीट होती है, राइट। यानी प्राइमरी फॉलिकल्स में जो होती है प्राइमरी oocyte वो मियोसिस 1 में होती है, ओके। प्रोफेज 1 और मियोसिस 1 में होती है। ये हम गैमेटोजेनेसिस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो प्राइमरी oocyte रिमेन्स इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ओके। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, राइट। और तो मियोसिस 1 कब कब कंप्लीट होती है? ओव्यूलेशन से जस्ट पहले, ओके। यानी सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने से जस्ट पहले मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है, ओके। और उससे क्या हो जाता है, फिर सेकेंडरी oocyte बन जाती है ओव्यूलेशन के बाद। तो यानी जो ओव्यूलेशन में जो सेल बाहर आ रही है वो सेकेंडरी oocyte होती है, राइट। और तो ये सेकेंडरी oocyte यानी बाहर जाती है, सेकेंडरी oocyte बन जाती है। मियोसिस 1 कंप्लीट होने से एक पोलर बॉडी बन जाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं उसको, और ये मर जाती है। उसके बाद ये सेकेंडरी oocyte बन जाती है, राइट। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है
यानी सेकेंडरी साइट में अगर स्पर्म कंबाइन कर जाता है, जायगोट बन जाता है, इसी ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म एंटर कर रहा है, तो सेकेंडरी साइट में मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। मियोसिस 2 कंप्लीट हो, स्पर्म एंटर होने के बाद कंप्लीट होती है, आपको याद रखना है, राइट। यानी सेकेंडरी साइट जो होती है वो, उसमें मियोसिस 2 स्टार्ट तो हो चुकी होती है, राइट, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होती है। तो मियोसिस 2 कब कंप्लीट होती है? मियोसिस 2 कंप्लीट होती है जब उसमें स्पर्म एंटर कर जाता है। स्पर्म एंट्री के बाद मियोसिस 2 कंप्लीट होती है, राइट, और उसे जायगोट बन जाता है। और मियोसिस 2 कंप्लीट होती है तो सेकंड पोलर बॉडी भी साथ में बन रही है, राइट। तो ये रिलेशन है बिटवीन सेल्स। ओके, सो ये तो हमने डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, रिलेशन बिटवीन पिट्यूटरी हार्मोन्स इन द ओवरियन हार्मोन्स एंड इन द यूट्रिन एंडोमेट्रियम, राइट। और एक दूसरा साइकिल होता है ईस्ट्रस साइकिल। तो ईस्ट्रल साइकिल जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है, नॉन प्राइमेट मैमल्स, नॉन प्राइमेट मैमल्स में होगा, ठीक। और नॉन प्राइमेट मैमल्स में जो ईस्ट्रल साइकिल होता है, ये ईस्ट्रल साइकिल केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है, ब्रीडिंग सीजन में होता है, ओके। जैसे डॉग्स में एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होता है साल में, तो ईस्ट्रल साइकिल ब्रीडिंग सीजन में ही होगा, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल नहीं होता, राइट, यानी कंटिन्यूस नहीं होता। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फीमेल्स में यानी कंटिन्यूस रहता है, राइट, लेकिन ये केवल ब्रीडिंग सीजन में ही होगा। तो मेंस्ट्रुअल ईस्ट्रस साइकिल बेसिकली होता क्या है, राइट। तो ये एक तो डिफरेंस ये है कि ये नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होता है, राइट। और तो इसमें क्या होता है, जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो नॉन प्राइमेट फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, ओके। इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोजन सर्ज बोलते हैं। Let me try here. एस्ट्रोजन सर्ज मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, काफी हाई अमाउंट बन जाता है, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज क्वाइट हाई। इसको बोलते हैं सर्ज, मतलब इंक्रीज हो जाना। तो एस्ट्रोजन सर्ज हो जाती है, और एस्ट्रोजन सर्ज हो जाती है तो फीमेल में एस्ट्रोजन की वजह से क्या होगा, फीमेल में सेक्स डिजायर बढ़ जाएगी, सेक्सुअल डिजायर विल इंक्रीज, ओके। और इसको यानी सेक्स सर्ज इंक्रीजेस, और इसको हम बोलते हैं हीट पीरियड बोलते हैं, फीमेल इज इन हीट पीरियड, हीट पीरियड, ओके। So that is because of surge in estrogen level, okay, heat period. And in heat period the female is receptive for the male for copulation. और तो ये हो गया आपका ईस्टर साइकिल। और जब ईस्टर साइकिल रुक जाता है नॉन ब्रीडिंग सीजन में, तो उसको बोलते हैं एनेस्ट्रस, एनेस्ट्रस, क्लियर। और एस्ट्रस साइकिल जो केवल ब्रीडिंग सीजन में होता है, और इसमें भी दो तरह के कैटेगरी हो सकती है, ओके। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये केवल एक ही बार होता है, ठीक है, उसको बोले मोनास्ट्रस बोलेंगे, मोनास्ट्रस, यानी ब्रीडिंग सीजन में एक ही बार होगा, ओके, फॉर एग्जांपल डॉग्स, राइट। और कुछ एनिमल्स में ये ब्रीडिंग सीजन में यानी कई बार होगा, ब्रीडिंग सीजन में कई बार होगा, तो उनको बोलेंगे पॉलीएस्ट्रस, फॉर एग्जांपल माउस। तो ये आपके ईस्टर साइकिल हो गया, राइट, डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्टर साइकिल। सो दैट इज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। तो बाकी चीजें हम गैमेटोजेनेसिस वगैरह हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी हम नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो I hope you will get benefit from this. Thanks. Have a nice day.